Welcome to Sharad V. More English School online lecture. Good afternoon, student. Now, yesterday I have started the explanation of the commercial application of the biotechnology. Now, yes, application of the biotechnology in the field of the crop or agriculture. The first point under that is the crop biotechnology, means that biotechnology which are used to increase the yield and variety of the cropland. Under that again further it is, yes, first point, to produce the hybrid seeds. The genes of the two different crops are recombined to form the hybrids of the various crops. This is especially used for the fruits. Now yes, using the crop biotechnology, the hybrid seeds are manufactured, and in this, the two good qualities of the food crops are, yes, mixed to form the, yes, good variety of the crop plant, and this is especially done in case of the fruits. Next one, genetically modified crops. अब ऐसे क्रॉप प्लांट जिसको क्या करते हैं, उनके जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाते टू, yes, obtain the desired characteristic in that crop plant. The crop developed with desired character by integrating foreign genes with their genome are called genetically modified crops. So those crops which are developed to obtain the desired characters, in that the one foreign foreign varieties of the crop plant is taken and its genome is added, the crop plant which obtain in, yes, our country, the high yielding variety with resistance to the disease, alkalinity, weeds, other stress like cold and drought. Okay, so yes, here the crop plants are modified so that they give the high yield, they can have the resistance to the certain type of the diseases, they can, yes, withstand the alkalinity, means they can bear the alkaline, yes, properties of the soil. Weeds, they can fight against the weeds to take the nutrient from the soil, etc. Now yes, first example under the genetically modified crop. यस, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट. फर्स्ट वन, बीटी कॉटन. बीटी कॉटन, a genes had been isolated from the bacterium bacillus thuringiensis and integrated with the genome of the cotton. अब बीटी कॉटन में क्या किया जाता है, जो बैसिलस thuringiensis नेम की जो बैक्टीरिया है, बैसिलस thuringiensis नेम की जो बैक्टीरिया है, उसका जीन्स निकाल करके, और दूसरा जो कॉटन का सीड्स है, कॉटन के पौधे के जीन्स में उसका जीन्स क्या करते, इंटीग्रेट करते, ज्वाइन करते. अब जो ये बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis है, उसके अंदर इंसेक्ट को किल करने की एबिलिटीज होती है. जो ये बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या है, इस इंसेक्ट को मारने की एबिलिटी होती है. उसके अंदर क्या है, ये टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया, जो दूसरे टाइप के इंसेक्ट को और क्या है, ये वॉर्म्स को किल करने में हेल्पफुल होता है. नाउ ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं किसके, कॉटन के, दे आर हार्म्ड बाय द बॉल वॉर्म्स. बॉल वॉर्म जो कीड़ा है, वो कीड़ा क्या करता है, उस पत्तियों को खाता है उसके. अब जब वो उसकी पत्तियों को खाता है तो क्या है, उसकी वजह से लीव्स क्या है, कम हो जाते हैं, या देयर इज नो लीफ ऑन द प्लांट ऑफ द कॉटन, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फोटोसिंथेसिस डू नॉट कंप्लीट. इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट नहीं होता, एंड इन absence of the photosynthesis the food product is not synthesized, and in lack of the food that plant do not develop properly, and because of that the overall, yes, production of the cotton get affected. So that's why, yes, here instead of spraying the insecticide
पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के बदले में क्या है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस नेम की जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर इन कीड़ों को मारने की एबिलिटीज़ है, उसके जीन्स को ही क्या करते हैं, उस कॉटन के पौधे के जीन्स में डाल देते। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी जो क्या है वो कॉटन जब वो डेवलप होता पौधा, तो उसके अंदर उस बैक्टीरिया का जीन्स है जो उस बॉलवॉर्म के लिए हार्मफुल है। तो जब भी बॉलवॉर्म इंसेक्ट उसको खाने के लिए आएगा या खाएगा, दैट टाइम यस वो क्या होगा, यस बिकॉज ऑफ द टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स है उस टॉक्सिन की वजह से वो किल्ड हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि वो जो जीन्स है जो ये टॉक्सिन क्रिएट करता है, उस बॉलवॉर्म के लिए जो टॉक्सिन क्रिएट करता है वो जीन्स को ही क्या किया उन्होंने, उसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया है, उस पौधे के जीन्स के अंदर डाल दिया है। तो उस पौधे के अंदर जो इस बैक्टीरिया का जो जीन्स रहेगा वो खुद टॉक्सिन मटेरियल उस पौधे में जनरेट करेगा। Due to this, the toxin which is fatal for bollworm, जो टॉक्सिन जो बॉलवर्म के लिए क्या होता है, ये हार्मफुल होता है, फैटल होता है, वॉज प्रोड्यूस इन लीव्स। तो वो जीन्स उस प्लांट में इंटीग्रेट करने से वो पौधा खुद ऐसे टॉक्सिन्स खुद प्रिपेयर कर लेता अपनी बॉडी में। अब यहाँ कॉटन का पौधा है, तो कॉटन के पौधे के अंदर खुद वो टॉक्सिन्स, वो टॉक्सिक मटेरियल सब प्रेजेंट है जो बॉलवॉर्म के लिए फैटल है, उसका जान ले सकता है। एंड बॉल्स ऑफ द कॉटन, अब ये जो क्या है, ये जो टॉक्सिन्स होगा, ये टॉक्सिन जो है उस पौधे के लीफ में और जो कॉटन का जो बॉल है, ठीक है, उस बॉल में प्रेजेंट रहता है। और इफ़ द बॉलवॉर्म, इफ द बॉलवर्म, बॉलवर्म क्या है, कीड़ा है जो उसके क्या है इस बॉल को खाता है। बॉल का मतलब यहाँ बर्ड्स है जिसमें से रुई निकलती, कॉटन निकलता है। तो ये बॉलवर्म में भी वो टॉक्सिन्स प्रेजेंट हो जाता है एज वेल एज उसकी पत्तियों में। तो पत्तियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है वो बॉलवर्म, नुकसान नहीं पहुंचा पाता है एज वेल एज जो जिसमें कॉटन निकलने वाला है उस बर्ड को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। किसकी वजह से, क्योंकि ये जो बॉलवर्म के लिए पॉइजन क्रिएट करने वाला जो बैसिलस थ्रियोजेनेसिस के अंदर प्रेजेंट जो जीन्स है उस जीन्स को ही क्या किया, उस पौधे के अंदर डाल दिया है। ठीक है, इसलिए वो जब भी बॉलवर्म इस उस पौधे को खाने आएगा तो क्या हो जाएगा, वो किल्ड हो जाएगा उस पॉइजन की वजह से। तो यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ रहा हम लोगों को, अलग से ये इंसेक्टिसाइड ये सब हम लोगों को नहीं डालना पड़ रहा है, क्योंकि ये क्या है, बीटी कॉटन है। द टॉक्सिन डिस्ट्रॉय इट्स एलिमेंट्री कैनल, अगर बॉलवर्म, जो बॉलवर्म है अगर उसकी पत्तियों को खाता है तो क्या करता है, ये जो बॉलवर्म है, बॉलवर्म के एलिमेंट्री कैनाल को डिस्ट्रॉय करता है एंड द बॉलवर्म डाइज, और उसकी वजह से बॉलवर्म क्या होता है, मर जाता है। बीटी ब्रिंजॉल, अब बीटी ब्रिंजॉल में भी क्या है, ये बैसिलस थ्रियोजेनेसिस नेम की जो बैक्टीरिया है उसके जीनोम को, उसके जीन्स को क्या किया है, ब्रिंजॉल के पौधे के जीन्स में इंटीग्रेट किया है, जोड़ दिया है। तो क्या होगा, जो उसको नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसेक्ट है जो ब्रिंजॉल के लीफ को और ब्रिंजॉल फ्रूट को जो खाते हैं, तो ऐसे इंसेक्ट जब उसको खाने आएंगे तो वो क्या होगा, उनको वो क्या है, ये पॉइजन उस पत्ते के साथ में मिलेगा या उसके फ्रूट के साथ मिलेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल बी किल्ड। तो हम लोगों को सेपरेटली, अलग से हम लोगों को उसमें इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो बीटी ब्रिंजॉल वेराइटी इज डेवलप्ड बाय यूजिंग द जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम द बैसिलस thuringiensis. This improved variety of brinjals kills the pest in the same way as the BT cotton does. अब ये जो है उस इंसेक्ट को उसी तरह किल करता है जैसे कि बीटी कॉटन में बॉलवर्म को वो ये क्या है, टॉक्सिन किल करता है। ओके, समझ में आया ये स्टूडेंट कि क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में क्या देखा हम लोगों ने, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल। इन बीटी ब्रिंजॉल एंड बीटी कॉटन, ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम याद रखो, बीटी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस
तो रीजेनेसिस ये जो है बैक्टीरिया, इसी के अंदर टॉक्सिन जनरेट करने की एबिलिटी होती है, और इसीलिए उसका जीन्स को आइडेंटिफाई करके, ओके, उस बैक्टीरिया के जीन्स को आइडेंटिफाई करके दूसरे इस तरह के पौधे के जीन्स में इंटीग्रेट करते हैं, उसमें जोड़ देते हैं उसके जीन्स में, जिसकी वजह से वो पौधे के अंदर ही वो टॉक्सिन्स जनरेट होता है, और बिकॉज ऑफ दैट जो इंसेक्ट उसको खाने आते हैं वो अपने आप किल्ड हो जाते हैं। golden rice. A gene synthesize the vitamins A. A gene synthesizing vitamin A. Vitamin A is called as the beta carotene. Has been introduced in the variety of rice. अब ऐसा जीन्स जो विटामिन ए बनाता है, ऐसा जीन्स जो क्या फॉर्म करता है, विटामिन ए, मतलब कि क्या है ये, बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन्स को साइंटिस्ट लोगों ने आइडेंटिफाई किया, एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द वैरायटी ऑफ द राइस। अब इनको, उसी को बहुत सारे जो राइस के पौधे हैं उनके जीन्स में इसको इंटीग्रेट कर दिया, जोड़ दिया है। As compared to the normal variety, this variety, which has been developed in 2005, contain 23 times more amount of the beta carotene. अब जब इस जीन्स को उस राइस के पौधे में इंटीग्रेट किया गया तो उस राइस के पौधे में बीटा कैरोटीन 23 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट में मिलता है, एज कम्पेयर टू द इस वैरायटी विच आर डेवलप इन 2005, जो 2005 में डेवलप किया था उसके कंपेयर में। तो इस तरह से क्या किया गया यहाँ पे, बीटा कैरोटीन मतलब विटामिन ए की क्वांटिटी को उस राइस में इंक्रीज करने के लिए उसको ये क्या किया गया है, उस विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाले जीन्स को इंटीग्रेट किया है। हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, अब देखो ये थर्ड पॉइंट, ओके, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट वन वी हैव सीड द हाइब्रिड सीड फॉर्मेशन, सेकेंड वन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इन दैट बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड गोल्डन राइस वी हैव सीन। नाउ हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट मीन्स टू डेवलप द इस प्लांट विच कैन टॉलरेट द हर्ब्स, ओके, हर्ब्स मतलब अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द क्रॉप प्लांट। ऐसे प्लांट जो अनवांटेड प्लांट के साथ ग्रो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हर्ब्स। तो हम लोगों को ऐसे प्लांट डेवलप करना जो क्या करे, वो खुद हर्ब्स को टॉलरेट करे, उनको अवॉइड करे, मतलब कि वो वीड्स जो है उस क्रॉप प्लांट का कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके, ऐसे क्रॉप प्लांट का डेवलपमेंट। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। तो हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट वीड्स ऑलवेज अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द मेन क्रॉप। जो मेन क्रॉप प्लांट है उसको हमेशा वीड्स अफेक्ट करते हैं, बिकॉज यस द वीड्स दे take the more and more nutrient from the soil, and because of that the main crop plant do not get the sufficient amount of the nutrient from the soil, and because of that the production decreases। इसकी वजह से प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है। इफ़ हर्बिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द वीड्स, अगर हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो यस along with that weeds the crop plants also get affected, and that insecticide or herbicide get accumulated into the soil and it cause the soil pollution। जब हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड को उस पे स्प्रे करते हैं उस क्रॉप प्लांट पे, तो ये हर्बिसाइड जो है हर्ब्स को तो डिस्ट्रॉय करते, एज वेल एज दे डिस्ट्रॉय सर्टन एक्सटेंट टू द मेन क्रॉप प्लांट अल्सो। तो मेन क्रॉप प्लांट को भी वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, एंड yes they get accumulated into the soil, और soil में जमा हो जाते हैं, and because of the soil get affected, soil get polluted। तो due to this herbicide tolerant plant variety of crops are being developed। तो इसकी वजह से कि क्या हो, ये क्रॉप प्लांट को नुकसान नहीं हो, सॉइल पॉल्यूट नहीं हो, तो इसकी वजह से हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट को डेवलप किया गया है, जो क्या कर सके, हर्ब को अवॉइड कर सके, उसको टॉलरेट कर सके। ड्यू टू दिस इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू सेलेक्टिवली डिस्ट्रॉय द वीड्स। तो इसकी वजह से यस
ऐसे क्रॉप प्लांट डेवलप किए गए कि सिर्फ और सिर्फ इस जब पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड स्प्रे करें तो सिर्फ और सिर्फ किसको नुकसान पहुंचे, वीड्स को, ना कि क्रॉप प्लांट्स को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बायो फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट क्या है, C1 क्या है, बायो फर्टिलाइजर्स। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह से बायो फर्टिलाइजर का यूज। तो क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी में फर्स्ट वन वी हैव सीड द हाइब्रिड सीड्स, सेकंड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन दैट बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजॉल, गोल्डन राइस, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट एक्सेट्रा। नाउ बायो फर्टिलाइजर्स। अब क्या बायो फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। Now yes, you know that to increase the production, the the farmers add the fertilizers, chemical fertilizers. Okay, तो क्या करता है ये, सो फार्मर नाइट्रोजन को इंक्रीज करने के लिए यूरिया उसको ऐड करता है उस क्रॉप प्लांट में। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द दैट chemical fertilizers, there are some alternatives which can increase the nitrogen content into the soil. So using that nitrogen content living organism, okay, is brought the concept of the fertilizers. Due to use of the biofertilizers instead of the chemical fertilizers, nitrogen fixation and phosphate solubilization ability of plants are improved. अब बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह पर, केमिकल फर्टिलाइज़र की प्लेस पे किसका यूज़ करना, बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके नाइट्रोजन फिक्सेशन से नाइट्रोजन ऑब्टेन करना एंड फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन एबिलिटी से क्या करना, ये फॉस्फेट प्लांट के लिए अवेलेबल कराना। ये इस तरह से पॉसिबल हुआ है एंड बिकॉज ऑफ दैट प्लांट्स आर इम्प्रूव्ड, इसकी वजह से प्लांट में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। द मेनली द बैक्टीरिया लाइक, अब इसके लिए क्या ये ऐसे लिविंग थिंग्स यहाँ पे हम ऐड करते हैं जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये फॉस्फेट सोल्यूबलाइजेशन इंक्रीज करते हैं विदाउट हार्मिंग टू द क्रॉप प्लांट को बिना नुकसान पहुँचाए। तो मेनी ऑफ द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, अजेटोबैक्टर, नॉस्टॉक, एनाबीना एंड प्लांट्स लाइक अजोला आर यूज एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब बायो फर्टिलाइजर्स में ये किस लिविंग थिंग्स का यूज होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया का, अजेटोबैक्टर बैक्टीरिया का, नॉस्टॉक बैक्टीरिया का। बिकॉज ये जो बैक्टीरियाज है दे फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द water soluble nitrates form, and because of that it can be easily taken by the plant, उसकी वजह से प्लांट उनको इजीली क्या कर सकते, ले सकते हैं। Anabina and plants like azolla are used as biofertilizer. So remember the yes plant azolla. Okay, yes, here azolla is shown. In the last year we have studied the tissue culture. Genetic improvement of the plant has become possible due to the tissue culture, and besides those characteristics inherited to the next generation. अब देखो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से ये पॉसिबल हो सका है कि क्या है, और टिश्यू कल्चर की वजह से ये पॉसिबल हो चुका है कि ये क्या है, इम्प्रूव वैरायटी के प्लांट्स हम लोग जनरेट कर सके और उसका कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सके। Now yes, use of the biotechnology in field of the animal husbandry. Now yes, this is the second main point, means क्या है, animal husbandry. What is the animal husbandry? Rearing of the animals for benefits, or yes, rearing of the animals for the इकोनॉमिकल पर्पज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इकोनॉमिकल पर्पज के लिए इनको पालना, इनको केयर करना ही क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। इन एनिमल हस्बेंड्री द गोट, sheep, हनी बी, फिशेस, फिशरीज, पर्ल कल्चर ऑल आर इंक्लूडेड इन द एनिमल हस्बेंड्री। ये सब चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व है। क्या क्या चीज़ें, यस, फिशरीज, ओके, and rearing of the honey bees called apiculture, and for the yes pearl मोती के लिए क्या है, ये पर्ल कल्चर एक्सेट्रा। ये सब जो है, ये दे आर इंक्लूडेड इन द एनिमल हस्बेंड्री एंड दीज आर पॉसिबल
because of the biotechnology. Two main methods as artificial insemination and embryo transfer are used in animal husbandry. अब दो मेथड्स एनिमल हस्बेंड्री में यूज होते हैं उस एनिमल की वैरायटी को इंक्रीज करने के लिए, उस एनिमल के अंदर डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स लाने के लिए. फॉर एग्जांपल डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक फॉर यस obtaining more milk, obtaining more meat from that animal, or obtaining the wool, more wool from that animal, or hair or nails और स्किन. उस एनिमल को रेयर करना, ज़्यादा ऊल के लिए, ज़्यादा एज क्या है एग्स के लिए, ज़्यादा फैट के लिए, ये सब क्या है ये दो मेथड से अवेलेबल है. फर्स्ट वन इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. पहला जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, इन दैट यस द गुड वेराइटीज ऑफ द मेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल इज inserted into the yes female of the yes the variety of animal which give the less milk. For example is giving the less milk. तो ऐसे कम दूध देने वाले जो फीमेल है उसके अंदर अच्छा मिल्क देने वाली जो वैरायटीज़ होती है उसके सीमेन को उसके अंदर क्या किया जाता है इंसर्ट कर दिया जाता है. एंड एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, या तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसी को क्या कर देते हैं दूसरे जो एनिमल्स है उनके इस यूटेरस में उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द बोथ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनिमल प्रोडक्ट. इसकी वजह से क्या होता है उसकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों इम्प्रूव्ड हो जाती. एग्जाम्पल मिल्क, मीट, ओल एट्सेट्रा. मतलब कि मिल्क का प्रोडक्ट्स उस इंक्रीज हो जाता, उसका यील्ड इंक्रीज होता, प्रोडक्शन मीट उसकी क्वांटिटी ज़्यादा मिलने लगती है. एंड ओल सिमिलरली एनिमल विथ मोर स्ट्रेंथ हैज़ बीन डेवलप फॉर द हार्ड वर्क. सिमिलरली एनिमल, ऐसे एनिमल को हम डेवलप कर सकते हैं जो ज़्यादा हार्ड वर्क कर सके हम लोगों के लिए. मीन्स टू टेक द मोर लेबर वर्क फ्रॉम देम, उनसे ज़्यादा यस हार्ड वर्क लेना, उनसे ज़्यादा मेहनत का काम लेना. नाउ थर्ड ह्यूमन हेल्थ. अब हम लोग क्या लर्न करने जा रहे हैं यस यूज़ ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स हेल्थ. ह्यूमन बींग के हेल्थ से रिलेटेड बायोटेक्नोलॉजी का यूज इस्तेमाल. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस आर द टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट. अब ह्यूमन हेल्थ मैनेजमेंट का जो मेन टू एस्पेक्ट्स है, दो जो मेन पहलू है वो क्या क्या है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. व्हाट इज मीन्ड बाय डायग्नोसिस? टू फाइंडिंग द एग्जैक्ट रीजन ऑफ द डिजीज इज डायग्नोसिस. डायग्नोसिस क्या है यस रीजन फाइंड आउट करना. बिकॉज ऑफ दैट, because of yes that the disease is produced, which type of disease is produced, which type of the pathogen yes created the disease, this is found yes using the diagnosis. उसको क्या किया जाता है डायग्नोसिस के थ्रू पता किया जाता है. मतलब कि बीमारी का कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो डायग्नोसिस से पता चलता है. जैसे कि टाइफाइड है तो टाइफाइड के क्या है ये जो बैक्टीरिया है वो है कि नहीं है, मलेरिया है तो है कि नहीं है, तो उसका पता लगाना वो क्या है डायग्नोसिस है. अगर कहीं पे स्टमक में पेन है तो सोनोग्राफी करके क्या करना उसको पता लगाना. ओके, अगर कहीं फ्रैक्चर है तो उसको क्या करना एक्सरे करके पता लगाना. ये सब चीज़ें क्या है डायग्नोसिस. एंड वंस इट इज अंडरस्टैंड दैट विच पार्ट इज़ अफेक्टेड, कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है, देन ट्रीटमेंट स्टार्ट. उसके बाद क्या होता है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है. बायोटेक्नोलॉजी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ द जीन्स. अब देखो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से यस कौन सा जो जीन्स है क्या रोल प्ले करता है वो भी पहचानने में हेल्प करता है. इफ़ एनी इन डिजीज ऑफ द पर्सन
Diagnosis of diabetes and heart disease has become possible even before the onset of the symptoms with the help of biotechnology. अब जो डायग्नोसिस और डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज का डायग्नोसिस, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां, यस इसका पॉसिबल हो गया है जब एक ही जैसे ही वो उसके सिम्टम स्टार्ट होते हैं उस सिम्टम से ही क्या है इस इमीडिएटली ये पता लगाया जा सकता है कि इसको डायबिटीज या हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, एंड दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. Diagnosis of diseases like AIDS, dengue can be done within few minutes. अब जो एड्स है और इसका डायग्नोसिस जो है ये कुछ सेकेंडों में पता लगाया जा सकता है कि वो पर्सन को एड्स है या नहीं है. Hence treatment can be done at earliest or immediately after knowing that yes that person is having the particular type of disease or not, and if having the disease then immediate treatment can be yes कैन बी स्टार्टेड. जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. कब? व्हेन वी कम टू नो द यस व्हाट इज द रीजन फॉर दैट डिजीज, जब हमको डायग्नोसिस से पता चल जाता है उस एग्जैक्ट रीजन. देन various medicines are used for treatment of the diseases. Example, हार्मोन इंसुलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़. अब देखो ये बहुत अलग अलग टाइप के मेडिसिन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं. फॉर एग्जांपल हार्मोन इंसुलिन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज़. हार्मोन इंसुलिन हार्मोन जो है वो डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है. अर्लियर इंसुलिन वॉज बींग कलेक्टेड फ्राम द पेनक्रियाज ऑफ द हॉर्सेज. स्टार्टिंग में शुरुआती दिनों में जब ये बीमारी के बारे में पता चला था उस टाइम जो इंसुलिन था वो हॉर्सेस के एलिमेंट्री कैनाल से निकाला जाता पेनक्रियाज से निकाला जाता था. तो ये जो इंसुलिन होता था वो इंसुलिन कहाँ से कलेक्ट करते थे? जो हॉर्सेस के पेनक्रियाज थे उससे कलेक्ट करना पड़ता था. However, nowadays due to biotechnology इंसुलिन कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया. अब ये बैक्टीरिया के हेल्प से भी इंसुलिन क्या है ये बनाना ऑब्टेन करना पॉसिबल हो गया. फॉर दिस पर्पज ह्यूमन इंसुलिन जीन हैज बीन इंसर्टेड इनटू द जीनोम ऑफ द बैक्टीरिया. अब इस पर्पज के लिए कि हम बैक्टीरिया से भी इंसुलिन प्रिपेयर कर सके तो फर्स्ट ऑफ ऑल yes the genes which is responsible for synthesizing of insulin in human being is identified. इसके लिए सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सी जीन्स है जो ये उस इंसुलिन को सिंथेसाइज करती है उसको आइडेंटिफाई किया गया. पहले क्या आइडेंटिफाई किया गया कि कौन सी ह्यूमन बीइंग की कौन सी जीन्स है जो ये इंसुलिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग the genes of that human being is inserted into the genes of the bacteria. और इसको आइडेंटिफाई करके उसके जीन्स को ह्यूमन बीइंग के उस इंसुलिन बनाने वाले जीन्स को बैक्टीरिया के जीन्स में क्या किया गया? इंसर्ट किया गया, ऐड किया गया. वेरियस वैक्सीन्स एंड एंटीबायोटिक्स आर आल्सो प्रोड्यूस इन द सेम वे. और इसी तरीके से अलग अलग टाइप के वैक्सीन और एंटीबॉडीज़ भी ये प्रिपेयर्ड किया जाता है. नाउ यस अंडर दैट अगेन सी द वैक्सीन्स एंड वैक्सीनेशंस. अब इसमें हम लोगों को क्या देखना है? वैक्सीन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में. दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड ये पॉइंट है. वैक्सीन इज द एंटीजन containing material given to acquire either permanent or temporary immunity against a specific pathogens or disease. तो वैक्सीन क्या है? एंटीजन है जिसके अंदर क्या मटेरियल प्रेजेंट रहता है? किसी पर्टिकुलर पैथोजन से हमेशा के लिए लड़ना और टेम्पररीली क्या है? लड़ना. तो वैक्सीन में क्या प्रेजेंट रहता है? एंटीजन. ऐसा एंटीजन रहता है जो क्या करे? पर्टिकुलर टाइप के बैक्टीरिया, पर्टिकुलर टाइप के वायरसेस से वो लड़ सके और ये परमानेंटली उसमें उसकी बॉडी में ह्यूमन बीइंग के प्रेजेंट रह के लड़ सके और
फॉर सर्टेन पीरियड। इस तरह से क्या किया जाता है, इस एंटीजन को इस ह्यूमन बीइंग के बॉडी में इंसर्ट किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन। ट्रेडिशनली वैक्सीन्स वेयर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ पैथोजेंस। ट्रेडिशनली वैक्सीन किससे बनाए जाते थे, पैथोजन से बनाए जाते थे। कंप्लीटली और पार्शियली किल्ड पैथोजेंस वेयर यूज्ड एज वैक्सीन। अब पूरी तरह से और पार्शियली किल्ड पैथोजन, पूरी तरह से मरे हुए पैथोजेंस और ये क्या है, थोड़ा सा मरे हुए पैथोजन इस वैक्सीनेशन में यूज किए जाते थे। However, due to this, there were chances of contracting the disease in case of the some person. But yes, because of introduction of the this pathogen, there were chances of contracting the disease of the some person. Some person में वो बीमारी पैदा करने की ये क्या है, ये symptoms ऑब्जर्व होते थे। Hence, an alternative scientists tried to artificial प्रोड्यूस वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये जो है वैक्सीन जो दी जाती थी पहले, उससे क्या है, उस पर्सन के अंदर वो बीमारी, दूसरी बीमारी भी होने की चांसेस थे, इसलिए अल्टरनेटिव मेथड फाइंड आउट किया गया। किसकी हेल्प से, वो भी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से। फॉर दिस पर्पस साइंटिस्ट प्रोड्यूस द एंटीजन इन लेबोरेटरी। इसकी के लिए ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, जो एंटीजेंस है, जो एंटीबॉडीज़ है, जो उनसे फाइट करती है, बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो फाइट करती है, उसको लेबोरेटरी में बनाया गया विथ हेल्प ऑफ द जीन्स आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजेंस। जो पैथोजन है उनके जीन्स को सेपरेट करके, आइसोलेट करके, ये जो पर्टिकुलर टाइप के डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे फाइट करने वाला वैक्सीन प्रिपेयर किया गया एंड यूज्ड इट इज़ एन वैक्सीन, और वैक्सीन के फॉर्म में वो इसका यूज़ करते। 10 सेफर वैक्सीन आर बीइंग प्रोड्यूस। इसकी बायोटेक्नोलॉजी की वजह से सेफ वैक्सीन क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। Now yes, protein which act as antigen are injected in pure form instead of injecting the killed or semi killed pathogens। अब जो प्रोटीन एंटीजन का काम करती है उसको प्योर फॉर्म में उस हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। ओके, उसको क्या करते हैं, उस प्रोटीन को प्योर फॉर्म में इंजेक्ट कर देते, ना कि क्या है, ये सेमी किल्ड और किल्ड पैथोजन को उसके अंदर इंट्रोड्यूस करने की जगह पे क्या है, उसकी जगह पे क्या करने लगे, प्रोटीन जो एंटीजन का काम करता है उसी को डायरेक्ट प्योर फॉर्म में इंसर्ट कर देते हैं। अब वो जो आधे मरे हुए या पूरी तरह से मरे हुए पैथोजन को उसके ह्यूमन बीइंग के बॉडी में या एनिमल के बॉडी में नहीं डालते। दिस प्रोटीन कीप द पर्सन अवे फ्रॉम द डिजीज। अब ये प्रोटीन यूज करने से क्या है, वो आदमी जिसके अंदर उस प्रोटीन को डाला गया है वो सेफ रहता है। by keeping the immune system active. Thus, injecting the antigen is the safest way in the vaccination. तो एंटीजन को इंजेक्ट करना, इंजेक्शन से क्या करना, उस पर्सन के अंदर इंसर्ट करना, डालना सबसे सेफ वे है वैक्सीनेशन का। वैक्सीन प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर मोर थर्मोस्टेबल। अब जो बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से जो वैक्सीन प्रिपेयर की गई है वो मोर थर्मोस्टेबल है। मीन्स क्या है, ये सब वो हीट होने पे भी क्या रह सकते, स्टेबल हो सकते। मीन्स दे डू नॉट चेंज देयर नेचर, वो अपने नेचर को चेंज नहीं करते। एंड रिमेन एक्टिव फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और लंबे टाइम तक क्या है वो सेफ रहते और एज वेल एज एक्टिव रहते। एग्जाम्पल, वैक्सीन ऑफ पोलियो, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा कि जैसे एग्जाम्पल किसका है, ये वैक्सीन जिस तरह का पोलियो का वैक्सीन और हेपेटाइटिस का वैक्सीन। नाउ स्टूडेंट अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। Yes, today is only 3 students are attending the lecture. Where are others? They don't.
Need to study. Yes, is anybody having any doubt? Yes, student, is anybody having any doubt? Okay, student, now yes, I am ending the meeting.